السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم خواتین اسلام اور عزیز طالبات، الحمدللہ بتوفیق الہی آج بروز منگل معمول کے مطابق درس مختصر صحیح بخاری پیش خدمت ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان دنوں صحیح بخاری کی کتاب العلم سے گزر رہے ہیں، جس میں ہم نے گزشتہ درس میں سیکھا تھا کہ جو شخص علم دین حاصل کرے، کسی درس میں موجود ہو، اسے چاہیے کہ جو غیر موجود لوگ ہیں وہاں تک وہ پیغام پہنچائے۔ مثال کے طور پر کوئی اس درس کو سن رہا ہے، گھر میں دوسرے لوگ اسے اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، تو جو نالج ہمیں اللہ تعالیٰ دے اس درس سے، اس بیان سے، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ کوئی مرد ہے، جو کوئی انسان ہے جو کسی جلسے، کانفرنس، سیمینار وغیرہ میں گیا ہے اور اس میں دین کی باتیں علماء سے سنی ہیں، سیکھا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غیر حاضر جو لوگ ہیں، یعنی جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں وہ پہنچا دے۔ وہ اپنے گھر میں پہنچا سکتا ہے، بتا سکتا ہے اپنے گھر والوں کو، جہاں تقاضا ہو، جیسا تقاضا ہو۔ وہ اپنے کلیگس کو بتا سکتا ہے، وہ اپنے بزنس پارٹنرز کو بتا سکتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو بتا سکتا ہے نا؟ تو اس طرح سے جو آدمی حاضر ہو، اسے چاہیے کہ جو غیر حاضر ہیں، اس بیان کو نہیں سن سکے، ان تک وہ بات پہنچا دے۔ اسی طرح یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں کہی، تو اس کا وبال اس پر ہوگا، اور اتنا سخت وعید ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں موضوع، من گھڑت اور ضعیف روایتیں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو اس نیت سے یا یہ وضاحت کرتے ہوئے بیان کرنا چاہیے کہ دیکھو، یہ میں بیان کر رہا ہوں، جو مثال کے طور پر محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ہاں، محرم کے 10ویں دن کے بارے میں یہ بات کہی اور سنی جا رہی ہے کہ جو شخص 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کشادہ کرے، کھلائے، سخاوت اور فیاضی کرے، تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس پر کشادگی کریں گے۔ یہ بات لوگوں کی زبان پر ہے، لوگ اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں، لیکن اے میرے بھائیو سن لو، میری بہنوں سن لو، یہ بات من گھڑت ہے، یہ بات موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ امت کے کچھ انسانوں نے اس کو گڑھا اور بنایا اور کہہ دیا کہ پیارے نبی نے فرمایا۔ تو اگر کوئی موضوع حدیث ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں
इस शर्त के साथ बयान करने की इजाजत है कि हम इसको बयान करें ये बताने के लिए कि भाई ये मौजू है, मनगढ़ंत है, इस पर अमल नहीं करना, या ये ज़ईफ रिवायत है, देखो मैं बयान कर रहा हूँ लेकिन ये नाकाबिल अमल है, ना हमारा अकीदा ना हमारा अमल, हम इसकी वजह से चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई आदमी मौजू मनगढ़ंत रिवायतों को बयान करे ताकि लोग अमल करें, ताकि लोग उसके मुताबिक अपना अकीदा बना लें, है ना, तो वो आदमी नबी पर झूठ बांध रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनाई है कि उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इसी तरह ये बात भी आई थी कि जो इंसान कोई बात सुने और वो अच्छी तरह समझना चाहता हो तो वो दोबारा पूछ सकता है अपने उस्ताद से, अपने मुदर्रिस से, अपने शेख से, हाँ, जो मुहादिर हैं उनसे दोबारा पूछ सकता है। इसी तरह ये बात भी आई थी कि औरतों के लिए जब भी ज़रूरत हो उनके लिए, उनकी तरबियत की खातिर, उन्हें इल्म सिखाने की खातिर वक्त फिक्स किया जा सकता है, दिन फिक्स किया जा सकता है, जगह फिक्स की जा सकती है, ताकि खवातीन की तरबियत, उन्हें भी इल्म दिया जाए। आज हमारे सामने जो बाब है वो है बाबू किताबतिल इल्म, इल्म की बातें लिखना, इसका बयान। जो कुछ आदमी सीखे उसे लिख ले। लिखना बहुत अहम होता है क्योंकि आदमी सुनता है तो बहुत सारी बातें उसे याद रहती हैं, बहुत सारी बातें भूल जाता है। लेकिन अगर इंसान अपनी डायरी बना ले, नोटबुक बना ले कि हम ये सही बुखारी का दर्स सुनते हैं, इनमें से हम कुछ अहम बातें नोट भी कर लें, तो जब वो नोटबुक में कैद कर लिया आपने, जब जरूरत पड़ी आपने उसे देख लिया, घर गए आपने कॉपी उठाई और उसका मुताला कर लिया, वो चीजें फिर से अजबर हो गई, मुस्तहजर हो गई, याद आ गई, है ना। इसलिए एक शायर कहता है कि अल इल्मु सैदुन वल किताबतु कैदुहु, क़य्यिद सुयूदक बिल हिबालिल वासिक़ा। कि इल्म एक शिकार है और लिख लेना उस शिकार को कैद कर लेना है। तो ए साहिब इल्म, ए तालिब इल्म, क़य्यिद सुयूदक बिल हिबालिल वासिक़ा, तो अपने शिकार को कैद कर ले मजबूत रस्सियों के जरिया, लिख कर, है ना। तो लिखना ये गोया इल्म को कैद कर लेना है, और उसका बहुत फायदा होता है जब इंसान डायरी बना लेता है, नोटबुक बना लेता है और उसमें लिख लेता है। तो जब कभी, हाँ, उस मौजू पर उसे बोलना है, उस सवाल का जवाब उसे देना है, तो उस कापी या किताब की तरफ रुजू कर लिया, पढ़ लिया, और बातें याद आ गई, उसने दूसरों तक पहुंचा दिया। मैं आप खवातीन से भी कहूंगा कि दौरान दर्स, हाँ, अगर आप भी अपने साथ कलम रखें, किताब रखें, नोटबुक रखें, किताब तो है ही आपके पास। तो ये चीजें अपने अंदाज में नोट करते रहें। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में आप वो चीजें लिख लें। वो सारी चीजें दर्स के दौरान आती हैं जो आपके उस हदीस में, वहां उसके तर्जमे में मौजूद नहीं, लेकिन उसकी शरह आपको बताई जाती है, तो बातें आ जाती हैं। हो सकता है बाद में वो बात जब आप रिवाइज कर रहे हों तो वो चीज आपको दिखाई ना दे, लेकिन आपने नोटबुक में लिखा हुआ है तो आपने उस हदीस को भी पढ़ा, और पेज नंबर के हिसाब से आपने, या हदीस नंबर के हिसाब से आपने वहां पर वो नोट भी लिख लिए, तो बस बहुत अच्छा है, आपने इल्म को कैद कर लिया। तो इल्म की बातें लिखने का बयान। वअन्हु रज़ी अल्लाहु अन्हु,
उन्हीं से रिवायत है रजी अल्लाह अन्हु, उन्हीं से मतलब हजरत अबू हुरैरा जो इससे पहले रिवायत के रावी थे, उनकी तरफ इशारा है कि उन्हीं से रिवायत है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हबस अन मक्कत अल क़त्ल अविल फ़ीला, बेशक अल्लाह ताला ने मक्का से कत्ल को रोक दिया, फील को रोक दिया यानी हाथी को। हाँ, कत्ल को रोक दिया यानी मक्का को हरम बना दिया, यही मतलब है उसका। मक्का हरम है, वहाँ कत्ल व क़िताल नहीं। ये और बात है, मुख्तलिफ तारीखों में आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, बल्कि आपके इल्म में बात आती है कि मुख्तलिफ अदवार में बाज़ दुश्मनान इस्लाम ने हरम के अंदर पहुंचकर मुसलमानों पर इल्गार किया है। हाँ, करामती लोगों ने एक जमाने में बाकायदा हुज्जाज किराम पर अपनी तलवारें बरसाई। पता नहीं क्या अकीदा था उनका, उन्होंने बहुत सारे हुज्जाज किराम को अपनी तलवारों से न सिर्फ जख्मी किया बल्कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बल्कि यही करामता, उन्होंने हजर अस्वद तक को निकाला और लेकर अपने यहाँ चले गए। एक जमाने के बाद फिर वहां से हुकूमतें वापस लाई। जालिम लोग हैं, जाबिर लोग हैं, सितमगर हैं, हाँ, अल्लाह के बंदों के दुश्मन हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, उन्होंने ऐसा किया। वरना हरम, वहां पर कत्ल और क़िताल मना है। और फिर अल्लाह ताला ने हाथी को रोक दिया था। हाथी का वाक़ा तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। अब्रहा वो जो है चाहता था कि हमारे यहाँ यमन में जैसे खाने काबा का तवाफ किया जाता है मक्का में, ऐसे हमारे यहाँ यमन में भी तवाफ हो। और वहाँ उस किस्म की चीजें बनाई गई, लेकिन लोग नहीं गए, उसको पजीराई नहीं मिली। तो फिर क्या किया उसने, उसने खाने काबा पर चढ़ाई की कि हम उसे ढा देंगे, और जब खाने काबा को हम ढा देंगे तो फिर कोई और खाने काबा बचेगा नहीं, तो लोग यहीं यमन में आएंगे और इसी का तवाफ होगा। तो वो उस जमाने में फीलों का, हाथियों का लश्कर लेकर निकला। और जब वो मक्का के करीब पहुंचता है तो बहुत सारे ऊंट वहां पर चरागाहों में चर रहे थे। उन ऊंटों को वो कैद कर लेता है, अपने फौजियों की हिरासत में ले लेता है। और मक्के में यह खबर भेजता है अब्दुल मुत्तलिब को कि हम खाने काबा को ढाने आ रहे हैं, और ये भी कि हमने आपके ऊंटों को कैद कर लिया हमारी हिरासत में। अबू तालिब आते हैं, कहते हैं कि अबरहा, आप हमें हमारे ऊंट दे दो। तो अबरहा कहता है कि अफसोस है, हम आपके घर खाने काबा को ढाने आ रहे हैं और आप मुझसे अपने ऊँट मांग रहे हैं, आपको ऊँट की पड़ी हुई है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि ऊँट हमारे हैं, इसलिए हम उसको तलब कर रहे हैं, आप हमारे ऊँट हमें लौटा दीजिए। और वो जो खाने काबा है ना, वो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत, अपने घर की हिफाजत कर लेगा, हमारी जरूरत नहीं। अबरा ने कहा ठीक है, ये आपके ऊँट हैं, ले जाओ, फिर तो हम उसे तोड़ देंगे। अब्दुल मुत्तलिब अपना ऊँट लेकर के गए और उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह, ये तेरा घर है, तू इसकी हिफाजत कर ले, हमारे अंदर तो ये ताकत नहीं कि हम इस लश्कर का मुकाबला करें।
अल्लाह अकबर। तो फिर जब ये लश्कर आगे बढ़ा है खाने काबा की तरफ, थोड़ी दूर जाकर जो सबसे बड़ा हाथी था जिस पर अबरहा बैठा हुआ था, महमूद, उस हाथी का नाम महमूद था, वो हाथी बैठ जाता है, सजदरेज हो जाता है। वो उसको अपना हथियार निकालता है, मारता है, उठाता है। हाथी उठता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, जब पीछे की तरफ उसे वो ले जाना चाहता है तो हाथी बहुत आराम से पीछे की तरफ चल पड़ता है। महमूद को देखकर तमाम महमूद और तमाम जो दीगर चील थे यानी हाथियां थी, सब के सब उस जगह से आगे नहीं जा रहे। अबरहा और उसके लश्कर के लोग हाथियों से उतरे, ये नहीं जाने वाले, चलो हम चलते हैं। अपना हथियार, अपना लश्कर लेकर के खाने काबा की तरफ बढ़े। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चिड़ियों का, परिंदों का लश्कर भेज दिया। अलम तरा कैसा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने उन पर परिंदे भेज दिए जो झुंड दर झुंड थे। अबाबील यानी झुंड दर झुंड। और हदीस में आता है कि हर परिंदे के चोंच और पंजे में पत्थर थे और उन पत्थरों पर, कंकरियों पर नाम लिखे हुए थे, ये किसके लिए है। और जब वो परिंदे उन कंकरियों को छोड़ते थे ऊपर से, वो जाकर जब फला फौजी को लगता था वो कंकर, तो उसका जिस्म पिघल जाता था। इस तरह से वो पूरी फौज तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। अल्लाह का घर अल्लाह ने चंद परिंदों से बचा लिया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह का लश्कर है। ऐसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने जमाने में तौहीद की दावत पेश की थी, और आपकी कौम आपकी दुश्मन हो गई, बादशाह वक्त नमरूद आपके खिलाफ हो गया, और उसने बहसो मुबासा भी किया, और उसने कहा आपका रब कौन है। तो इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो मारता है और जिलाता है। तो कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ऐसा करता हूँ। बुलाया एक कैदी को जो कत्ल का मुजरिम है, जिसकी गर्दन मारी जानी चाहिए, और उसको छोड़ दिया, कहा जाओ हमेशा मैं इसके लिए आजाद हूं। जिंदगी दे दी मैंने। और एक मासूम बेगुनाह को बुलाया और गर्दन मार दी, कहा देखो उसको जिंदा रहना था, मैंने मार दिया, मौत के घाट उतार दी। लेकिन वो बेवकूफ और अहमक इंसान नहीं समझ कि वो बातें किससे कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उसकी हमाकत पर मुस्कुराए और फरमाया कि सुन लो, मेरा रब वो है, रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब वो है, याति बिशम्सी मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, जो सूरज को पूरब से निकालता और पश्चिम में डुबोता है। तो ए बादशाह, अगर वाकई तुम रब हो तो तुम उसे पश्चिम से निकाल कर पूरब में डुबो दो। फबुहित अल्लज़ी कफ़र, तो वो हक्का बक्का रह गया, कोई जवाब उससे न बन पड़ा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है इब्राहिम, अगर तुम्हारा रब है तो तुम जो है अपने रब को लेकर आओ, हम भी अपना लश्कर लेकर के आते हैं, मुकाबला करेंगे, मुकाबला होगा। ये उससे पहले की बात है जब नारे नमरूद में उसने इब्राहिम को डालना था। अभी बहसो मुबासे में ये बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। तो रात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह तू जानता है मैं तो यक्का व तन्हा हूँ, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग हैं वो मुशरिक लोग, अल्लाह तेरी तौहीद के दुश्मन है। अल्लाह मेरे पास कोई लाव लश्कर नहीं, लेकिन तू अपने नेक बंदों की तरफ से काफी हो जाता है।
हाँ, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन कुरान में। तो ऐ अल्लाह, ये नमरूद का लश्कर, तेरे लश्कर के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं। दूसरे दिन आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैदान में तो अकेले हैं। उधर नमरूद पूरी फौज के साथ इकट्ठा है, और लश्कर के साथ। नमरूद देखता है, कहता है क्या हुआ इब्राहिम, तुम्हारा लश्कर कहाँ है, तुम्हारा रब कैसे मुकाबला करेगा। इब्राहिम कहते हैं कि रब मुकाबला करना जानता है। बस इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने छोटे से छोटी सी मखलूक, मच्छर, मच्छरों का झुंड अल्लाह ने भेजा, बदली की तरह नमूदार हुए, और वो मच्छर आए, और जिस जिस फौजी को उन्होंने काटा वो भी छलनी हो गए, पिघल गए। और थोड़ी देर में नमरूद ने देखा कि सब लाशों की लाशें पड़ी हुई हैं, मच्छरों के काटने से। अल्लाह अकबर। और उसके बाद ये नमरूद बचा है। अल्लाह ने एक मच्छर को हुक्म दिया और वो उसके नाक में, नथने में घुस गया और उसके दिमाग पर जा पहुंचा। और वहां जा करके उसने जिस अंदाज में उसको बेकल किया है कि वो नमरूद अपना सर मारता था कहीं दीवार पर, कहीं खंबे पर। लोग कहते थे क्या हो गया है, आखिर वो सर मार मार कर उसी में हलाक हो गया। एक छोटे से मच्छर ने उसकी जान ले ली। अल्लाह की मखलूक का मुकाबला ये जुनूदुल्लाह है, कोई कर सकता है नहीं। शर्त ये है कि हमारे पास तौहीद हो, हमारे पास ईमान बिल्लाह की मजबूती हो, हम अपने अकीदे में खरे और पक्के हों, अल्लाह की मदद आती है। और इस तरह अल्लाह का लश्कर अपने दुश्मनों से मुकाबला ले लेता है। तो अल्लाह ने फील को रोक दिया। अबरहा का हाथी महमूद सजदरेज हो गया, वो आगे न बढ़ा। वसल्लत अलैहिम रसूलुल्लाहि वल मुमिनीन, और अल्लाह ने उनके ऊपर मोमिनों को और अपने रसूल को गालिब कर दिया। अला व इन्नहा लम तहिल्ल li अहदिन क़ब्ली, सुन लो, खबरदार हो जाओ कि बेशक ये मक्का मुझसे पहले किसी के लिए भी हलाल नहीं किया गया था। वलम तहिल्ल li अहदिन मिन बादी, और मेरे बाद भी किसी के लिए ये हलाल नहीं किया जाएगा, ये हरम ही रहेगा। अला व इन्नहा हल्लत ली सअतम मिन नहार, और खबरदार मेरे लिए भी ये दिन के मुख्तसर से वक्त में हलाल किया गया। दिन की एक घड़ी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हलाल किया था, यानी ये मेरे लिए उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हलाल हुआ था, यानी फतेह मक्का की तरफ इशारा है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि फला फला मुजरिम, जो लोग मास्टर माइंड थे मुसलमानों को सताने में, यहाँ से निकालने में पेश पेश थे, वो जहां भी पाए जाए मार दिए जाए। तो खाने काबा की दीवार से भी अगर लिपट कर मारे गए, पाए गए, तो वहां भी उनको कत्ल कर दिया जाए, ये तंबीह की गई थी। और इस तरह से ये मक्का उस वक्त थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के रसूल कहते हैं, मेरे लिए हलाल हुआ था। सातम मिन नहार, यानी दिन के थोड़े से हिस्से, दिन की एक घड़ी में। अला व इन्नहा साअती हदी हराम, और सुन लो, ये मक्का इस वक्त भी हराम है। ला युख्तला शौकुहा, इसके कांटे नहीं काटे जाएंगे। वला युगदत शजरुहा, इसके दरख्तों को नहीं काटा जाएगा।
वला तुल्तक़तु साक़िततुहा इल्ला लिमुनशिदिन, और ऐलान करने वाले के सिवा किसी के लिए उसकी गिरी पड़ी चीज उठाने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी वहां की गिरी पड़ी चीज नहीं उठाएगा, हाँ मगर वो जो ऐलान करने के लिए उठाए। फमन कुतिल फहुव बिखैरिन नज़रैन, और अगर कोई कत्ल कर दिया जाए यहाँ, तो फिर वो दो इख्तियार है, उसके पास दो ऑप्शन है। इम्मा अन युक़ल, या तो फिदिया ले ले, अपने मकतूल शख्स का फिदिया ले ले। व इम्मा अन युक़ाद अहलुल क़तील, और या तो उसका क़िसास ले ले जो कत्ल हुआ है, यानी जान के बदले जान ले ले। फिदिया लेना या जान लेना, ये दो इख्तियार है। फजाअ रजुलुम मिन अहलिल यमन, इतने में यमन का एक शख्स आया। फ़क़ाल उक्तुब ली या रसूल अल्लाह, तो कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरे लिए इसे लिखवा दीजिए। फ़क़ाल उक्तुबू ली अबी फुलां, मतलब ये जो मसाइल आपने बताए हैं ना मक्का के बारे में, मक्का की फजीलत के बारे में, तो अल्लाह के रसूल आप ये फजाइल लिखवा दीजिए मेरे लिए, ताकि मैं इन्हें याद रख सकूं और मैं इन्हें दूसरों तक पहुंचा सकूं। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुबू ली अबी फुलां, फुलां के लिए आप लिख दो। फ़क़ाल रजुल मिन कुरैश, इतने में कुरैश के एक आदमी आए और कहने लगे इल्लल इज़खिर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इज़खिर की इजाजत दे दीजिए। इज़खिर घास है, अल्लाह के रसूल हरम में भी इसकी इजाजत दे दीजिए। फ़इन्ना नजअलुहु फी बुयूतिना व कुबूरिना, इसलिए कि ये इज़खिर घास जो है हम इसको अपने घरों में ज़रूरत पर इस्तेमाल करते हैं, और अपनी कब्रों पर भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं अल्लाह के रसूल, है ना। मुर्दों को दफन करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी इजाज़त दे दीजिए हरम में भी। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल इस्तिर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ठीक है, इस्तिर नहीं, इस्तिर नहीं, यानी इस्तिर को काटा जा सकता है। इस्तिर घास हरम के अंदर भी उगी हो तो उसके काटने की इजाज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। तो इस तरह से ये लिखने की बात इस हदीस में मौजूद है। इमाम बुखारी इस हदीस को लाए क्या बताने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुबू ले अबी फुला, हाँ फुला के लिए, अबू फुला के लिए इसको लिख दो। तो उनके लिए इस इल्म को लिख दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान फरमाया था, तो आपके सहाबी ने अबू फुला के लिए इसको लिख दिया। तो इल्म को लिखना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लिखने वाले लोग मौजूद थे, और जब जहाँ ज़रूरत पड़ी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया है। कुरान आप लिखवाते थे, इसी तरह सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के पास अपने अपने दफातर थे, अपनी अपनी नोटबुक उस ज़माने की अपने अंदाज की थी, लिखने वाले सामान, लिखने वाली चीज़ें। तो सहाबा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुनते थे उसे अपने यहाँ नोट किया, आपकी हदीस भी नोट हुआ करती थी। जी। कुरान तो आप बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में उसे लिखवाया करते थे, हाँ उसे महफूज रखा जाता था। लेकिन सहाबा जो आपसे इल्म सीखते थे, उस इल्म को भी वो अपने अपने खास नोटबुक में जिस अंदाज के भी उस जमाने में थे, हाँ पत्तों पर, हाँ चमड़ों पर, और इस तरह से तो वो लिख लिया करते थे। हाँ, तो इससे पता चलता है कि मक्का उस वक्त के लिए हलाल अल्लाह के नबी के लिए हुआ था, मुख्तसर वक्त के लिए। उससे पहले भी हराम था, और उसके बाद भी आज तक और कयामत तक मक्का हरम रहेगा। न वहाँ के उगे हुए दरख्त काटे जाएंगे जो खुद से उग जाते हैं, हाँ, और न ही वहाँ कत्ल क़िताल होगा, इससे मना किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए कि ये हरम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, ये दूसरी हदीस है,
सफ़ा नंबर 135 पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कहते हैं, लम्मा इश्तद्द बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजहुहु, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द बढ़ गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, क़ाल ईतूनी बिकिताबिन अक्तुबु लकुम, तो आपने कहा कि मेरे पास कोई लिखने वाली चीज लाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूं, ला तदिल्लु बादहु, जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। क़ाल उमर, तो उमर ने कहा, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबहुल वजअ, क्या कहा? हजरत उमर ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा है, व इंदना किताबुल्लाह हस्बुना, और हमारे पास अल्लाह की किताब है, ये हमारे लिए काफी है। यानी हम इस वक्त प्यारे नबी को तकलीफ न दें। फख्तलफू, तो लोग इख्तलाफ करने लगे, वकसर अल्लाह, तो शोरगुल मच गया, लोगों ने इख्तलाफ किया और शोरगुल तू तो मैं होने लगी। क़ाल क़ूमू अन्नी, तो आपने कहा लोगों मेरे पास से उठ जाओ, वला यंबग़ी इंदी अत्तनाज़ु, मेरे यहाँ लड़ाई झगड़े का क्या मतलब, मेरे पास लड़ाई झगड़े का क्या काम है, लोगों मेरे पास से उठकर चले जाओ। इस तरह इस हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कुछ लाओ लिखने की चीज, मैं तुम्हारे लिए लिखता। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकसद, जो उन्होंने रोका कि नहीं हमारे पास अल्लाह की किताब है, काफी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा है, हमें तकलीफ नहीं देना। ये हजरत उमर ने प्यारे नबी से अज़राह मोहब्बत फरमाया, और वो हजरत उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे, आपकी बीमारी देखकर, आपके हालात को देखकर, हाँ, उन्होंने अज़राह मोहब्बत ये कहा। और उसकी दलील ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन के बाद भी 4 रोज तक इस दुनिया में बाकायदे हयात रहे, 4 रोज तक, इस वाक़े के होने के 4 दिन बाद तक आप जिंदा रहे, और आपने उसमें बहुत सारी वसीयतें और नसीहतें उम्मत को की हैं। हाँ, आप वसल्लम की वसीयतें नसीहतें हम सब पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं उलमा। लेकिन इस हदीस को लेकर अहले तशय्यो यानी शिया हजरात कहते हैं कि देखिए उमर ने रोक लिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने जा रहे थे कि मेरे बाद खलीफा अली होंगे, और उमर ने नहीं लिखने दिया। सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद 4 दिन तक जिंदा रहे, और आपने बहुत सारी बातें अपनी जबान से उम्मत को नसीहत की, तो अगर यही बात थी तो आप वो नसीहतें जो आपने बताई और की हैं उम्मत को, आप उनमें ये बात भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, अहले तशय्यो को यहाँ से शोशा मिला, और उन लोगों ने नऊज़ बिल्लाह हज़रत अबू बकर और उमर पर इस तरह के इल्जामात लगा दिए जो बिल्कुल बेबुनियाद। अब अगर आपने 4 दिन तक हयात पाई उसके बाद और आप खामोश रहे, आपने फिर किसी से कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे से आप राजी। तो ये हदीस इमाम बुखारी लेकर आए हैं इल्म को लिखने का बयान में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कहा था कि कुछ लाओ मैं लिखना चाहता हूँ, है ना। तो ख्वातीन इस्लाम इस हदीस को अच्छी तरह से याद रखें, कोई जिक्र करके या कोई वीडियो बनाकर आप तक भेजे तो आप सहाबा के बारे में बदगुमान ना हो, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हाँ, अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जिंदगी भर, हाँ, प्यारे नबी के शहदाई जानिसार सहाबा बनकर उन्होंने जिंदगी गुजारी, आपके इशारों पर उन्होंने, हाँ, बड़े बड़े मरहले सर किए हैं, और उसके बाद भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि देखो फलां को खलीफा बनाने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किताब नहीं दी लिखने के लिए, उन्होंने कलम नहीं दिया लिखने के लिए। हाँ, हाँ, मतलब सरासर इल्जाम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लिख सकते थे, आप बोल भी सकते थे, लेकिन अगर आपने उसके बाद भी 4 दिन जिंदगी पाई और आपने ऐसा कुछ नहीं कहा हजरत अली के बारे में,
कि वो मेरे बाद खलीफा हैं, हाँ, या मेरे इस तरह से जो है मेरे बाद उनके हाथ पर खिलाफत की बैत हो। तो बात साफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने के काम की बाबत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को लान तान करना और ये कहना कि उन्होंने लिखने नहीं दिया, नऊज़ बिल्लाह, उन्होंने खिलाफत के इरादे से उनका इरादा ये था कि वो हजरत अली से खिलाफत को छीन लें, इसलिए उन्होंने प्यारे नबी को देने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, नऊज़ बिल्लाह। बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है। हाँ, वैसे भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे खलीफा हैं। अबू बकर सिद्दीक के हाथों पर लोगों ने, उम्मत ने बैत किया है, वो खलीफा अव्वल है। तो ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश है। इस हदीस को अच्छी तरह से आप लोग याद रखें, और कभी भी आपके पास पेश हो तो असल में मौसम जब आता है ना मुहर्रम वगैरह का, तो इस तरह की चीज़ें पेश की जाती हैं, मुख्तलिफ स्टेजों से सुनाई जाती हैं, बहुत सारे वीडियोज वायरल होते हैं, और इस तरह अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुम के बारे में लोग, हाँ, मुसलमानों को बदगुमान करते हैं, हाँ, कि देखो इन्होंने क्या किया, किस तरह से अली की खिलाफत छीन ली वगैरह। हालांकि वही अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हाँ, जिन्होंने अबू बकर के हाथ पर कुछ अर्से के बाद बैत की है। इसी तरह उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ, के हाथ पर जो है बैत की है उन्होंने। हाँ, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और के हाथ पर भी उन्होंने बैत की है, और एक रियाया के तौर पर उन्होंने जिंदगी गुजारी। फिर चौथे खलीफा के तौर पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुंतखब हुई, उम्मत ने उनको चुना और वो भी खलीफा राबिब बने। ये तमाम चीजें, हाँ, खुद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब कब पूछा जाता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है, तो कहते थे कि अबू बकर सिद्दीक हैं। हाँ, फिर कौन है, फिर उमर हैं, फिर कौन है, फिर उस्मान है। हाँ, और उसके बाद कहते थे कि मैं तो नबी का एक आम सा उम्मती, है ना। तो इस तरह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बयान आप देखें कि किस तरह से हजरत अली को मोहब्बत से अबू बकर से, उमर से रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन। लेकिन आज शिया हजरात और ये ग्रुप जिसने मुहर्रम को क्या बना लिया है, नौहा मातम का महीना, सोग वाला महीना, हाँ, कि हर साल हमें मनाना है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। प्यारे नबी ने इस दुनिया में किसी भी शख्स को 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने की इजाजत नहीं दी। हाँ, अगर दिया है तो एक खातून को दिया है जो बेवा हो जाए। बेवा खातून, अकेली वो खातून है पूरी तरह से इस्लाम में जो अपने शौहर की वफात पर 4 महीने 10 दिन तक इद्दत गुजार सकती है, शोक मना सकती है। उसके अलावा किसी को नहीं कि साल ब साल नौह मातम की महफिलें, हाँ, और ताज़िया और इस तरह की तमाम चीजें, इजाजत नहीं है इस्लाम की तरफ। लेकिन आज सब कुछ कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हजरत अबू बकर और उमर से मोहब्बत ऐसी है कि हजरत अली की पहली शादी हजरत फातिमा से हुई, जिनसे हसन और हुसैन हुए। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब तक हयात थी, हजरत अली ने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात के बाद हजरत अली की शादियां कई खवातीन से हुई हैं, और उनसे बेशुमार बच्चे हुए। तकरीबन 18 बच्चे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, 18 फर्जंद, बेटियां अलग रही होंगी, 18 फर्जंद, यानी आपके नरीना औलाद तकरीबन, इसमें से मोहम्मद बिन हनफिया एक। हाँ, इसी तरह हजरत अली ने, हाँ, अबू बकर नाम रखा है, उमर नाम रखा है, और फिर हसन और हुसैन की औलादों में जाइए तो वहां भी अबू बकर नाम मिलता है, उमर नाम मिलता है, हसन के यहाँ भी, हुसैन के यहाँ भी। कितने मोहब्बत करने वाले लोग थे हजरत अबू बकर और उमर। लेकिन आज ये हजरात ने ये बात बिल्कुल ये झूठ इस कदर फैला दिया कि उम्मत का एक तबका इसको सच मानने लगा कि नौज़ुबिल्लाह उमर ने हजरत अली की खिलाफत छीन ली, अबू बकर ने हजरत अली की खिलाफत छीन ली, और नबी को नहीं लिखने दिया, और कलम नहीं दिया, किताब नहीं दिया, और इस तरह से उनका हक मार लिया वगैरह वगैरह, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि प्यारे नबी ने अपनी वफात से कभी कितनी वसीयतें आपने बयान फरमाई हैं, आपने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि अली मेरे बाद खलीफा होंगे और उनके हाथ पर बैठ किया। आप कह सकते हैं ये सब झूठ है। इसलिए ये हदीस
जब भी पेश की जाए तो आप खवातीन को चाहिए कि इसका जो सही मफहूम है उसे समझें, ताकि दूसरी बहनों को भी आप बता सकें। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए जल्द ही, पिछले हफ्ते की बात है, मैं सीट वाला कंपाउंड में दरस हदीस दे रहा हूँ। तो वहाँ के ट्रस्टी साहब के पास एक मैसेज आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत फातिमा अबू बकर के पास गई और कहा कि मुझे मेरे अब्बू की विरासत में से दीजिए, मैं अपने अब्बू की बेटी हूँ, मेरे अब्बू का माल मुझे दीजिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहनु माशरल अंबिया ला नूरस मा तरकना सदका, कि हम अंबिया की जमात वो हैं कि जो माल और जायदाद का वारिस किसी को नहीं बनाते, जो कुछ हम छोड़ते हैं वो सदका होता है, यानी वो बैतुल माल में जाएगा। तो फातिमा देखो ये प्यारे नबी का फरमान, तो मैं आपको विरासत कैसे दूं? नबी के इल्मी विरासत लोगों को मिलती है, उलमा को मिलती है, उनके बाद के लोगों को मिलती है, आपके माल की विरासत नहीं। तो हजरत फातिमा ने दलील दिया कि देखो कुरान में है वह वरिसा सुलेमान दाऊद, और सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस हुए दाऊद अलैहिस्सलाम के। तो देखो अल्लाह ताला कहता है कि सुलेमान दाऊद के वारिस हैं। ये हजरत फातिमा की अपनी समझ थी, उनका इज्तिहाद था। असल में उन्हें प्यारे नबी की वो हदीस मालूम नहीं थी, माशर लंबिया ला नूरस मा तरकना सदका, हम जो छोड़ते हैं वो सबका होता है, हम किसी को जायदाद का वारिस नहीं बनाते, नहीं मालूम, उन्हें जानकारी नहीं। और उन्होंने कुरान में ये आयत पेश की और कहा देखो सुलेमान वारिस हुए हैं दाऊद के। तो मेरी बहनों, आप आप भी सुन रही हैं, तो असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद के जो वारिस हुए थे वो किस चीज, उनके इल्म के और नबूवत के वारिस हुए। अल्लाह ताला ने दाऊद के बाद सुलेमान को वारिस बनाया, है ना, और उन्हें बादशाह भी बनाया और उन्हें नबी भी बनाया। तो इल्म नबूवत की विरासत अल्लाह ताला ने उनको दी, उसका जिक्र कुरान में। यहाँ मुराद जायदाद की विरासत नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके बाद उनको नबी बना दिया, तो नबी के पास जो कुछ था वो उनके पास रहा, यानी बैतुल माल में। और इस तरह से अंबिया का कह लीजिए जो वर्षा है वो वर्षा इल्म है, वर्षा नबूवत है, जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया को दिया है। और उसके बाद अब अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा को अंबिया का वारिस अल्लाह ने बनाया है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई थी। तो इस तरह से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खफा हो गई और नाराज हो गई, बातचीत करना उन्होंने बंद कर। तो ये किसी शिया भाई ने भेजा था उनके पास कि देखो सही बुखारी में ऐसा है कि हजरत अबू बकर ने फातिमा को नहीं दिया, बाग़े फिदक नहीं दिया, फला नहीं दिया, फला नहीं दिया, नहीं दिया, वो नहीं दिया, और इससे फातिमा नाराज हो गई। ये बात सच है, हदीस में इसका जिक्र मिलता है कि वाक़या रूनमा हुआ, बातचीत हज़रत अबू बकर और फातिमा के दरमियान हुई, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सीधी सच्ची हदीस हज़रत फातिमा को सुनाई कि बेटी फातिमा, अंबिया की जायदाद का वारिस, अंबिया अपनी जायदाद का वारिस किसी को नहीं बनाते, जो कुछ को छोड़ कर जाते हैं वो सदका होता है और वो बैतुल माल हो जाता है। जो सही बात उन्होंने बताई। इस तरह लोग मैसेज भेज कर लोगों को बदगुमान करते। हाँ, उन्होंने पूछा तो फिर हमें उसका जवाब देना पड़ा, बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ। तो प्यारी बहनों, कभी कभी इस तरह अहले तशय्यो की तरफ से बात क्लिप्स आती हैं, बात वीडियोज आते हैं या बात मैसेजेस आते हैं, और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि देखो तुम्हारी किताब सही बुखारी में, देखो अल्लाह के कुरान में, देखो फला है फला, मिस इंटरप्रेट करते हुए। हाँ,
اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر کے کا کانٹیکٹ نہ بتا کر آپ کے پاس وہ ویڈیو بھیجتے ہیں یا وہ میسج بھیجتے ہیں اور اس طرح سے بدگمان کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا جو رتبہ اور مرتبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے معزز ہستیاں وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت اس دنیا میں دکھائی وہ ہستیاں کہ جن کی کوشش اور محنت کے نتیجے میں آج اسلام ہم تک پہنچا ہے. اللہ اکبر. وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات عدالت اور سچائی اور امانت داری دیانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچائی. ان ناقلین دین کے بارے میں اگر کوئی بدگمان کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی تم بددین ہو، تم زندیق ہو. ہمارے نبی کے صحابہ تو دین کو نقل کرنے والے ہیں، بالکل عدول ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں. ہم ان کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے جا بجا ان کے محاسن اور ان کے خوبیوں کو اللہ نے بیان فرمایا. اور سب سے بڑی بات اللہ نے کہا کہ وہ تو جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب ایسی ہستیوں کے بارے میں ہم بدگمان ہو جائیں ہو نہیں سکتا. پیاری بہنوں، اس طرح سے اگر کبھی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بدگمانی کا شکار نہ ہو. صحابہ یا صحابیات کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو سمجھ جائیے یہ سلف کا عقیدہ ہے کہ جو صحابہ یا صحابیات کے بارے میں بد زبانی کرے تو بس سمجھ جاؤ کہ وہ بد زبان، وہ زندیق ہے، بددین ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی کے صحابہ تو صادق اور سچے تھے، ان کے سچائی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور وہ دین کو ہم تک نقل کرنے والے ہیں. ہم ان کے بارے میں آخر کسی کی بات کیسے قبول کریں؟ اللہ نے جس کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی. اس کے بعد ہے باب العلم، العلم والعظۃ باللیل. یہ صفحہ نمبر 136 اور باب نمبر 30 ہے کہ رات کو علم اور نصیحت کی باتیں کرنے کا بیان. عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہتی ہیں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے یعنی نیند سے. فقال، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الحسن، آج رات کتنے نازل کیے گئے. وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزانے آج کھولے گئے. ایقظوا صواحب الحجر، سونے والیوں کو جگاؤ. فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، جگاؤ ان سونے والیوں کو کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہوں گی جو آخرت میں برہنہ ہوں گی. اس حدیث میں کیا ہے؟ صواحب الحجر یعنی ان حجرے میں جو خواتین ہیں ان کے لیے صواحب الحجر نبی لکھا. ایقظوا، بیدار کرو انہیں، جگاؤ انہیں. کاسیہ، پہننے والی، عاریہ، برہنہ اور ننگی. تو بہت ساری دنیا میں لباس پہننے والی وہ آخرت میں ننگی ہیں. باب باندھا امام بخاری نے کہ علم اور نصیحت رات میں کرنے کا بیان، اور یہ حدیث لے کر آئے. اس لیے کہ اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد آپ نے جو باتیں فرمائی اس میں یہ بھی تھی کہ آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں، اسی طرح کتنے خزانے کھولے گئے. جگاؤ ان حجرے والیوں کو. یہ رات کا وقت، رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کی باتیں سکھائیں اور بتائیں. رات میں اگر مثال کے طور پر مغرب بعد یا عشاء کے بعد درس دروس کا معاملہ ہو، بیان کا ہو، اجلاس اور اجتماع کی کوئی شکل ہو تو انشاءاللہ اس کی گنجائش موجود ہے. رات میں علم اور نصیحت کی باتیں کرنا
ثابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہے باب السمر فی العلم، رات کو علم کی باتیں کرنا۔ السمر اسی سے سمیر اور سمیرہ، رات میں باتیں کرنے والا اس کو سمیر کہتے ہیں، اور رات میں باتیں کرنے والی سمیرہ ہے نا، بہت سارے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو سمر کے معنی رات میں بات کرنا۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری زندگی میں، آپ نے جب ہمیں عشاء پڑھائی، زندگی کے آخری ایام تھے آپ کے، فلما سلم، تو جب آپ نے سلام پھیرا، قاما، آپ کھڑے ہو گئے، سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، فقال، اور آپ نے کہا، ارأیتکم لیلتکم هذه، کہ تم آج کی اس رات کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہو کچھ؟ ارأیتکم، بھلا بتاؤ تم، لیلتکم هذه، اپنی اس رات کے بارے میں، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا جانتے ہو بتاؤ؟ فإن رأس مئة سنة منها، پھر آپ نے خود اس کا جواب دیا، آپ نے پہلے پوچھا بتاؤ جانتے ہو اس رات کی اہمیت کیا ہے، پھر آپ جواب دیتے ہیں، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی بھی شخص جو اس وقت زمین پر موجود ہے وہ زندہ نہیں رہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ تم اپنی اس رات کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہو؟ سنو، آج سے لے کر 100 سال جب پورا ہوگا، آج کی اس رات سے گن کر 100 سال جب پورا ہوگا، تو اس وقت دھرتی پر جتنے لوگ ہیں وہ اس وقت موجود نہیں رہیں گے، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی اب 100 سال کے بعد نہیں بچے گا، آج کی رات سے شمار ہوگا، اور جتنے بھی لوگ ہیں ہاں وہ مطلب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے رات میں بتائی تھی صحابہ کو، ہاں، تو امام بخاری نے بات ہے، رات کو علم کی بات نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں خواتین، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ حضرت خضر علیہ السلام تو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حیات خضر عطا فرمائے، لوگ ایسا دعا دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خضر آج بھی زندہ ہیں، اور تم بلاؤ تو وہ آ جاتے ہیں تمہاری مدد کرنے کو، پھر کیا عقیدہ ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں حضرت خضر بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اگر رہے بھی ہوں تو نبی نے اس وقت جو فرمایا تھا کہ آج کی رات سے لے کر 1 سال مکمل ہونے پر کوئی بھی جو اس دھرتی پر اس کی پیٹھ پر موجود ہے وہ باقی نہیں بچے گا، تو خضر بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور نعوذ باللہ لوگوں کی مدد کو آتے ہیں، یہ بالکل شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث اسی بات کی ہے، سنا دوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، یہ صفحہ نمبر 137، حدیث نمبر 97۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہتے ہیں، بتو فی بیت خالتی، میں نے رات گزاری اپنی خالہ کے گھر میں۔ کون ہے خالہ؟ میمونۃ بنت الحارث، اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے گھر میں ہم نے رات گزاری۔ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں میمونہ رضی اللہ عنہ۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات انہی کے پاس تھے، یعنی میری خالہ میمونہ کے گھر میں۔ کون بیان کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء الی منزلہ، پھر آپ اپنے گھر آئے، منزل یعنی گھر، فصلی 4 رکعات، تو آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی،
ثم نام، اور پھر آپ سو گئے، ثم قام، پھر رات میں آپ اٹھے، ثم قال، اور آپ کہنے لگے، نام الغلیم او کلمۃ تشبہها، کہ بچہ سو گیا، بچہ سو گیا. یہ ابن عباس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہاں، کیونکہ اپنی خالہ میمونہ کے یہاں ہے، میمونہ کے محرم تھے وہ، میمونہ ان کی خالہ تھی. تو نبی نے کہا بچہ سو گیا ہے. او کلمۃ تشبیہ، اسی طرح کی کوئی بات آپ نے کہی، اسی سے ملتی جلتی، اسی کے مشابہ. تو مقامہ، پھر آپ کھڑے ہوئی، فقمت ساری. تو ابن عباس کہتے ہیں میں جا کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، یعنی جب آپ قیام اللیل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے، تو میں آپ کے یسار یعنی بائیں سائڈ میں کھڑا ہو گیا. فجعلنی عن یمینی، تو آپ نے مجھے اپنے دائیں، اپنا ہاتھ لے جا کر اپنے دائیں کھڑا کر دیا. کیونکہ ابن عباس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی لوگ تھے، جماعت قائم ہو گئی تھی، اور جماعت میں بائیں طرف امام کھڑا ہوتا ہے، دائیں طرف مقتدی. ابن عباس نہیں جانتے تھے، بچے تھے، وہ جا کر بائیں طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام بن گئے تھے، وہ امام کی جگہ کھڑے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلطی نماز ہی میں آپ نے اس کی اصلاح کی، اور آپ نے اپنا ہاتھ لے جا کر انہیں پیچھے سے پکڑا اور لے کر کے آپ اور داہنی طرف لا کر آپ نے کھڑا کر دیا. فصلی خمس رکعات، پھر آپ نے 5 رکعتیں پڑھی. ثم صلی رکعتین، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھی. ثم نام، پھر تھوڑا سو گئے. حتی سمعت غطیتہ خطیت، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز ہم نے. ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے نکلے، یعنی نماز فجر. اس میں 2 3 باتیں یاد رکھیے. ایک تو اس میں یہ ہے کہ رات میں آپ نے قیام اللیل کیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ابن عباس سے بات چیت کی ہے نا، دین کی باتیں وغیرہ وغیرہ. ہاں، ابن عباس جایا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے، بڑے حریص تھے. اور ان کے ابا حضرت عباس کبھی کبھی جان بوجھ کر بھیجتے تھے کہ بیٹا جاؤ اپنی خالہ کے یہاں، ہاں، اور وہاں سے نبی کی باتیں سیکھا کرتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیا کرتے تھے اپنی خالہ کے گھر، ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری ہوتی تھی یا ویسے بھی. اور چونکہ آپ محرم تھے حضرت میمونہ کے اور بچے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہیں سونے دیتے. اس میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر آ کر 4 رکعت، یہ 4 رکعت بہت فضیلت والی رکعت ہے نا، یہ معمول بنا لینا چاہیے. سنت موقدہ نہیں، نفلیں ہیں، لیکن جو آدمی سونے سے پہلے یہ 4 رکعت پڑھ لیا کرے بڑی فضیلت. بعض روایتوں میں آتا ہے جو صحابہ کے آثار ہیں، یعنی حدیث مرفوع نہیں، صحابہ کے آثار کہ اس انسان کو قیام اللیل جس نے یہ 4 رکعت پڑھ لیا سونے سے پہلے، تو گویا رات میں جاگ کر قیام اللیل کرنے کا، پوری رات قیام اللیل کا ثواب، پوری رات قیام اللیل کا ثواب اس کو ملے گا. بعض روایتوں میں، بعض آثار صحابہ میں ہے کہ شب قدر میں جاگ کر رات میں عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 رکعتیں تو ثابت ہیں، لیکن اس روایت میں یہ فضیلت جو میں نے ابھی بیان کی نہیں ہے. یہ کہاں پر ہے؟ صحابہ کے آثار میں عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی یہ فضیلت. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور جب اٹھے تو آپ نے 5 رکعتیں پڑھی. 5 رکعتیں مطلب 2 رکعت آپ نے تہجد کی پڑھی، اور 3 رکعت وتر کی پڑھی، ہے نا، یہ 5 رکعت. تو اس سے ایک استدلال یہ بھی ہے کہ تہجد کی کم سے کم رکعت 2 ہے، اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے، اور وطر ملا کر 11. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جب حضرت ابن عباس آئے تھے، آپ نے قیام اللیل میں تہجد کے لیے 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، اور 3 رکعت آپ نے وطر پڑھی، اور اس طرح 5 رکعتیں آپ کی ہو گئی. اور پھر تھوڑی دیر میں اذان ہوئی، تو اذان کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی. یہ کیا تھی؟ صلاۃ فجر کی سنت. یہ فجر کی 2 سنت ہے جو آپ نے پڑھی، ہے نا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
सोए यहाँ तक कि आपके खर्राटे की आवाज सारी नहीं, और फिर आप गए और आपने नमाज पढ़ी, आपने वजू नहीं किया। तो ये बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए खर्राटे लेकर, और हम सब जानते हैं कि सोना नाक़िज़े वजू है। अगर आदमी कोई बावजू है जाकर सो जाए और खर्राटे लेकर सो रहा है बेधड़क बिल्कुल, है ना, तो ये माना जाता है कि उसका वजू टूट गया। यही सही बात है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद सो गए, फिर उठे, आपने नमाज पढ़े और आपने वजू नहीं किया। दूसरी रिवायतों में है कि आपने वजू नहीं किया। तो ये आपके खुसूसियात में शुमार किया गया कि अल्लाह ने आपको जो खुसूसियात अता फरमाई उनमें से एक ये भी है। आप कहते थे कि अनामु आइनी वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जागता है ना। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से एक चीज है, जो आपकी स्पेशलिटी है। उम्मती अगर कोई सो जाता है वजू बनाकर फिर उठता है, तो उसको फिर से वजू करना होगा, तब वो नमाज पढ़ सकता है। उसके सोने से पहले का वजू बाकी नहीं रहा, सोने की वजह से टूट। तो ये चंद बातें थी जो आज हमने इस दर से मुख्तसर सही बुखारी में आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी गुजारे। अब आप सवाल करें। अस्सलाम जज़ाकल्लाहु वालेकुम खैरन warahmatullahi कसीरन। wabarakatuh. आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहन। पिछली पिछली क्लास में आपने ये बताए थे कि वालिद की जो कमाई है उसमें उनकी बहनों का और उनके भाइयों का हिस्सा मौजूद है। अगर वो अपने बाप से आता है या फिर वो खुद ही कमाते हैं, तो अगर उन्होंने ऐसी वसीयत लिखी हो अपनी हयात में कि मैंने जो कमाई की है तो उसमें सिर्फ मेरी बच्चियों का और मेरी हयात का जो उनकी वाइफ है उनका हिस्सा है, बाकी और किसी का हिस्सा नहीं बनता, तो शरीयत में इसका क्या जवाज है? बहन कह रही हैं कि अगर अगर कोई शख्स, उसके पास बेटियां हैं, सिर्फ बेटे नहीं हैं, बीवी है, भाई जिंदा है, बहनें जिंदा हैं, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी वसीयत बनाता है कि मेरे बाद मेरी जायदाद सिर्फ मेरी बेटी और बीवी को मिले, किसी और को नहीं, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। पहली बात सुन लीजिए, वसीयत उसको नहीं बनाई जाती जिसका अपना हक है। अल्लाह की तरफ से फिक्स किया हुआ हक है कुछ लोगों का। हाँ, कुछ के मरने पर, है ना, जैसे बाप के मरने पर बेटों का बेटियों का हक है। अब इनके लिए वसीयत बनाने की भी जरूरत नहीं है। हदीस में ला वसीयत अले वारिसिन, जो लोग वारिस हैं, हकदार हैं, उनको वसीयत नहीं की जाएगी। वसीयत किसके लिए की जाती है? जिसका हक नहीं बनता उनकी जायदाद में, लेकिन वो जरूरतमंद हैं, जैसे कोई पोता है, पोती है, हाँ, और उनका हक नहीं बन रहा है क्योंकि बेटे बेटियां जिंदा हैं, तो रूट को मिलेगा, ब्रांचेस को नहीं जाएगा। हाँ, ये तकसीम जब होगी तो ब्रांचेस को जायदाद नहीं मिलेगी, रूट्स को मिलेगी, यानी बेटे बेटियों को। तो पोते को दादा कहता है कि चलो मैं वसीयत कर देता हूँ, ताकि वसीयत के जरिए उनको कुछ मिल जाए 1/3 के अंदर। तो उनके लिए वसीयत, या कोई किसी और गरीब, बेवा, मोहताज, यतीम, मस्जिद, मदरसा, उनके लिए वसीयत कर, जिनका फिक्स हक उसकी जायदाद में नहीं बनता, लेकिन जिनका पहले से हक मुतय्यन है कि अल्लाह ने इतना दिया है, उनको उनको उनका हक मिलेगा। वसीयत किया जाए ना किया जाए, वसीयत की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब अगर किसी का हक फिक्स है उसमें, कोई चाहे कि मैं वसीयत करके दूसरों को दे दूं, उसको ना दूं, तो ऐसा इंसान जालिम ठहरेगा, अल्लाह के यहाँ गासिब माना जाएगा। वो कयामत के दिन उसको ये जो हक मारा है किसी का, उसका बदला देना होगा। अल्लाह ताला उसकी नेकियां बांट कर उस हक वाले को दे देंगे कयामत के दिन। तो जिसका हक बन रहा हो उसका हक वसीयत के जरिया नहीं मारा जा सकता, कि भाइयों को हाँ लावारिस कर दें, बहनों को लावारिस कर दें, सारी जायदाद बेटियों के नाम लिख दें। नहीं, ऐसा किसी ने किया है तो गलत किया है, और उसकी वसीयत नाफिज नहीं की जाएगी। सही ये है कि अगर इस्लाम पे कोई चलने वाला है, उसे अल्लाह का डर है, आखिरत का डर है, जन्नत और जहन्नम का यकीन है उसे,
तो अगर ऐसा किसी ने ना जानकारी में कर दिया हो वसीयत कि मेरी पूरी जायदाद मेरी बेटियों को मिले, मेरे भाई को ना मिले, मेरी बहन को ना मिले, मेरी बीवी को ना मिले, तो उसकी वसीयत नाफिज नहीं की जाएगी। गलत है वो वसीयत। और वसीयत करने वाले को जहन्नम से बचाने की फिक्र वारिसों को करना, उन बेटियों को करना चाहिए कि मेरे अब्बू की आखिरत खराब ना हो, हमारा जितना हक बनता है हम उतना ही लेंगे, मेरी अम्मी का जितना हक बनता है मेरी अम्मी उतना लेंगी, बाकी ठीक है, उन हमारे जो चचा वगैरह हैं उनका हक बन रहा है तो उनको भी दिया जाएगा जो उनका, ताकि हमारे अब्बू की आखिरत खराब ना जज़ाकल्लाह खैर। हमारे वालिद ने ये जान के नहीं किए थे, उनके इल्म में नहीं था। और पिछली क्लास में जो आपने बताया, उस वजह से ये सवाल हमारे जहन में आया है। हम इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह उस्ताद को बता देंगे कि हमारी कितनी फुप्पू बनती है और हमारे कितने चाचाजाद है, चाचा भाई, चाचा है और ताई अब्बा है। हो। तो उसके हिसाब से हमारी जो मिल्कियत है उसमें हमारे चाचाओं को और हमारे ताई अब्बा को और हमारी जो जिंदा फुप्पू है तो उनका कितना हिस्सा बनता है। और हम हयात में 4 बेटियां हैं माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, और उनकी एक बीवी है जिन जितना हिस्सा आता है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। आप वो जरा हमें मालूम करके बता दीजिए। अच्छा, तो हमें हमें आप ये बता दीजिए कि आप मरने वाले की जो जायदाद है उसमें आप लोग कितने हो जो वारिस हो रहे हो अभी? 4 बेटियां हैं और उनकी शरीक हयात है। यानी आपकी अम्मी या आपकी वो मतलब वो दूसरी zौजा है उनकी? नहीं नहीं, अम्मी हैं और 4 बेटियां हैं माशाल्लाह जो हयात है। और फुप्पू फुप्पू 3 बनते हैं और भाई 3 बनते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अ, एक मिनट मैं अभी आपको बता देता हूँ। जी। हाँ, अगर आपके पास जायदाद का हो कि जैसे इतने लाख इतने करोड़ या जो भी है ना, ऐसा कुछ है कि इतनी जायदाद हमें तकसीम करनी है? अ, अभी हमारे पास तो जो 2 घर है माशाल्लाह बिस्मिल्लाह जो है, तो उसकी कीमत अभी फिल वक्त तो 1 करोड़ बनती है। और एक शॉप है जिसकी कीमत 70 लाख बनती है। कुछ और रकम है जो मिला के तकरीबन 2 करोड़ बनता है, 2 CR बनता है। हम्म। तो सीआर तकरीबन बनता है। हाँ। हाँ, 2 CR तक बनता है। अच्छा अच्छा, तो आप बेटियां हो गई, बेटियां, पहले माल लिख लेते हैं। ये माल आपने बताया 2 CR है ना? जी 2 CR है। और उसके बाद जो बेटियां हैं वो तीन तीन बेटियां हैं ना? जी, 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हो गई। और मरने वाले के भाई भी हैं, है ना? जी जौजा भी हैं, उनकी जौजा भी जी जी। एक जौजा है। और सगे भाई हैं ना वो लोग? सगे भाई है जी। सगे भाई कितने हैं? सगे भाई 3 है और सगी बहनें 3 हैं। सगे भाई, ये तीनों भाई हयात हैं? तीनों भाई हयात है। 3 भाई और सगी बहनें भी 3 हैं? सगी बहनें भी 3 है, तीनों भी हयात है। जी जी। अब ये हुआ रिजल्ट। तो देखिए, जो बेटियां हैं उन तीनों चारों बेटियों को 2/3 हिस्सा, यानी जी पूरी जायदाद का कितना, 2/3। 2/3 हिस्सा मिलेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि एक बेटी को 33 लाख, जी 33,000 एक बेटी को मिलेगा। अगर आप चाहें तो लिख लें। जी 33 lakhs के थर्टी थ्री एक थाउजेंड बेटी, हाँ, 33,33,000 जी
333 इतना एक बच्ची का बनना है, मतलब 33,33,000। ठीक है। 33,000 जी। हाँ, एक बच्ची का। इसी तरह एक हर बच्ची को इतना इतना मिलेगा, चारों बच्चियों जी को। मतलब ये एक बेटी का हिस्सा है। जी 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 हाँ, तो वो टोटल तकरीबन 1 CR 33 लाख हो जाएगा, 33,000। जी ठीक है। अच्छा, और जो बीवी हैं उनको सुमुन 1/8 मिलेगा, यानी जो आपकी अम्मी हैं उनको 1/8 हिस्सा मिलेगा। और ये 1/8 बन रहा है 25 लाख। लिख लीजिए। जी जी आपकी अम्मी को 1/8 यानी तकरीबन 25 लाख इनको मिल रहा है जी जी 2 CR में। अच्छा, जो भाई और बहनें हैं, जी तो भाई और बहन, एक भाई का हिस्सा 9,25,925। एक 925 भाई, जी। एक नौ भाई का लाख पच्चीस हजार नौ सौ पच्चीस हाँ। जी। इसी तरह इसी तरह तीनों भाइयों को इतना इतना मिलेगा। तीनों भाइयों का हिस्सा है। जी जी। जी और एक बहन को उसका आधा, जैसे एक भाई को मिला 9,25,925, तो जी उसका आधा 4,62,962। 962 जी। एक बहन को, यानी आपकी एक फूफी को कितना मिलेगा? 4,62,962। 4,62 रुपया जी। हम्म। जी ठीक है, तो इस तरह जी से फिर आप टोटल कर लीजिए, इंशाल्लाह वो पूरा 2 CR बन जाएगा। जी इंशाल्लाह लिख लिया बिस्मिल्लाह। आपने? जी एक बहन का बनेगा 33,33,000 333। 333 जी। जी। माँ को 25 लाख हाँ। जी। भाई को 9,25,925 एक भाई को, ऐसे ए, तीनों एक भाई को। भाई को ऐसे जी। भाई को जाएगा। एक बहन को हाँ। 4,62,962 ऐसे तीनों बहनों को जाएगा। जी जी जी, आपकी जी तीनों फूफियों को इतना इतना। जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ठीक है। खैर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है ना कि वो आपने अभी बताया ना 4 रकात नफिल नमाज इशा सोने से पहले, तो हाँ। अगर मैं वितर पढ़ लेती हूँ फिर ये पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपको ये पढ़ना है ना, जी तो बेहतर ये है, क्योंकि अभी आप सो नहीं रहे, सोने से पहले ही पढ़ना है ना? जी जी तो सोने से पहले जो नमाज आप पढ़ें, बेहतर ये है कि उसमें आखिरी नमाज वित्र हो। जी तो आप ऐसा पढ़ लें, 4 रकात फर्ज, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा। हाँ, अब उसके बाद आप जिक्र उसका, आप तिलावत कुरान जो भी करना चाहें। ईशा की ये 6 रकातें, और वित्र को मिला लें 3 रकात, 9 रकात टोटल है। लेकिन ये 3 रकात या 1 रकात या 5 रकात जो भी आप पढ़ना चाहती हैं, तो इसको अभी बाकी रखें। अगर आपने मामूल बना लिया है, आपका इरादा है कि मैं सोने का वक्त जब होगा तो मैं जाऊंगी, वजू करूंगी, वजू करके मुसल्ला बिछा कर मैं ये 4 रकात नमाज पहले पढ़ूंगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और उसके बाद मैं वित्र पढ़ूंगी। तो जो है, बेहतर यह है कि वित्र बाद में पढ़िए। अच्छा, अगर आपका मामूल तहज्जुद पढ़ने का भी हो, तो और आपको यकीन हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंख खुलती है, अलार्म लगे ना लगे, मैं 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे जग जाती हूँ। हाँ, और अलार्म अल्हम्दुलिल्लाह आजकल सहूलत है, तो मैं जरूर जगूंगी, अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर बेहतर यह है कि आप आखिर वक्त में तहज्जुद जब पढ़ें, तो उस वक्त जो है अखीर में अजान फजर से पहले वितर पढ़ लें। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको डर है, अगर मैं वितर पढ़े बगैर सो जाऊं तो पता नहीं अजान से पहले, फजर से पहले आंख खुले नहीं खुले, कभी कभी अलार्म लगाती हूँ फिर भी बज बज के अलार्म खत्म हो जाता है और मेरी आंख नहीं खुलती, तब ऐसे इंसान के लिए बेहतर यह है कि सोने से पहले पहले वितर पढ़ ले, पढ़ के तब सोए वितर। लेकिन क्योंकि आप ये 4 रकात पढ़ना चाहते हैं सोने से पहले, तो आपके लिए अफजल ये है कि ईशा के फौरन बाद आप वितर ना पढ़ें। जब ये 4 रकात आप सोने से पहले पढ़ लें, तब फिर उसके बाद ये वितर पढ़ें।
امید تھی میں آپ کو بتا جزاک اللہ. سکتا. آمین. جی بہنوں السلام علیکم اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ ایک سوال ہے، کیا کوئی عورت عدت میں ہے تو اگر وہ کوئی بیان دینا چاہتی ہے، یعنی مطلب گھر میں ہی اگر کوئی مذاکرہ کرتی ہے تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ ہاں، گھر میں رہتے ہوئے اگر وہ عدت میں ہے اس کو باہر نہیں جانا چاہیے. بیان، تقریر، ان چیزوں کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے. الا یہ کہ کوئی مسئلہ وراثت کا پیش آ گیا اور وہ عدت میں اور وہ اس مسئلے کی گواہ ہے کہ کوئی وصیت ہے جو اس کے شوہر نے لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی، کیا ہے، لوگ جھگڑ رہے ہیں، اس کو باہر جانا پڑ رہا ہے کہ وہاں جا کر گواہی دے دے تو جا سکتی ہے. یہ ضرورت ہے، مصلحت ہے امت کی. یا اس طرح کی اور کوئی چیز کی گھر میں سبزی بھاجی لانے والا کوئی نہیں ہے، وہی بیچاری ہے، جائے گی تو گھر میں سبزی آئے گی، راشن آئے گا، نہیں تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ضرورت ہے چلی جائے. اسی طرح کبھی کبھار کچھ میڈیکل چیک اپ وغیرہ کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی جانا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر نے بلایا ہے. ہاں؟ تو اس ضرورت کے لیے بھی ہو جا سکتی ہے. اس طرح کی ضرورتیں شریعت نے کنسیڈر کی کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. لیکن جہاں جہاں آپشن ہے کہ بھائی بہت سارے مقرر و مقررہ ہیں الحمدللہ، میرے بغیر بھی بیان ہوگا، تقریر ہوگی، اجتماع ہوگا، تو کہیں اور جائے بغیر، کہیں اور نہ جائیں لیکن کہیں اور جائے بغیر اپنے گھر میں اگر وہ یہ علمی بات کسی کو بتانا چاہتی ہیں، بیان دینا چاہتی ہیں، تقریر کرنا چاہتی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. اور اچھا، یہ سنیے، اس میں بہن اگر آواز جا رہی تو اس میں دو چیزیں اور پوچھی جا سکتی ہیں. ایک تو بیوہ خاتون کی عدت اور دوسرے مطلقہ کی عدت ہوتی ہے جس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا لیکن اس نے خلا لے لیا، طلاق لے لیا. تو وہ خاتون اگر مثال کے طور پر کہیں پڑھاتی وڑھاتی ہے بچیوں کو تو جا سکتی ہے. طلاق کے بعد جو عدت پوری کرنی ہے، خلا کے بعد جو عدت 1 مہینہ کی ہے پوری کرنی ہے، تو اس بیچ میں اس کو رکاوٹ نہیں ہے. وہ مثال کے طور پر بچیوں کے مدرسے میں بچیوں کو پڑھاتی ہے، اس کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے، حجاب و نقاب کے ساتھ آتی جاتی ہے. ہاں، اس طرح کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ طلاق یا خلا کے بعد والی جو عدت ہے وہ جا سکتی ہے، وہ بیان دے سکتی ہے، باہر جا کر کے پڑھا سکتی ہے. پڑھانا ظاہر سی بات ہے، بیان دینا ہے، قرآن حدیث وغیرہ وغیرہ. لیکن جو خاتون عدت میں ہے اس کا معاملہ دوسرا ہے نا، وہ نہیں نکلے گی، وہ باہر نہیں جائے گی بلا ضرورت. وہ بھی ضرورت قصویٰ کہا جاتا ہے، انتہائی ناگزیر حالت میں، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں کہ میڈیکل چیک اپ کے لیے کوئی نہیں ہے، سبزی بھاجی لانے کے لیے، راشن لانے کے لیے، ہاں، یا کوئی گواہی ایسی دینے کے لیے جس کی اکیلے وہی گواہ ہے اور اس کی گواہی کے بغیر وہ معاملہ ہی حل نہیں ہوگا اور جانا پڑ رہا ہے کورٹ میں گواہی دینے کے لیے، تو اس طرح کی چیزوں میں وہ جا سکتی ہے. ادروائز اس کو باہر نہیں جانا چاہیے اور گھر میں رہتے ہوئے عزت پوری کرنی چاہیے. امید کی بات میں سمجھا. ایسا مسئلہ تھا کہ ہے نا، جیسے شوہر کا انتقال ہوا اور گھر میں ہی ہے، جیسے تعلیم وغیرہ ہوتی ہے تو ہوں، تو آپس میں ہی مذاکرہ کرتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں جی میں جی، پوچھ رہی تھی، تو ایسا ہاں آپس میں کر بالکل، سکتے ہیں نا، ہاں صرف ہاں عورتیں بالکل عورتیں ہی؟ بالکل. ہاں ہاں، بات کرنے سے منع نہیں ہے. جب بات کرنا منع نہیں ہے آپس میں عورتوں سے تو کہہ لیجیے پھر درس اور تدریس کیوں منع ہوگا؟ ہاں، گھر ہی میں، وہ بھی گھر ہی میں، تو گھر میں بچوں کو پڑھانا ہے یا آپس میں مذاکرہ کرنا ہے، ہاں انشاءاللہ بالکل، یہ تو خیر کا باعث ہے اور اس بیوہ کے لیے اس کے دکھ اور درد کو، غم کو کم کرنے والی چیز ہے یہ. ہاں، قرآن و حدیث کا درس، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. انشاءاللہ بالکل کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. شیخ، وہ جو کسی کو اگر ایسا طلاق نامہ ملے کہ جس میں جو گواہ ہیں وہ فرضی ہوں، یعنی ایسا بتایا گیا کہ 2 گواہ ہوئے، 2 گواہوں کی موجودگی میں اس شخص نے طلاق دی، اور جس
जो दो गवाह हैं उनको अगर वो औरत नहीं जानती, उसको जो है पोस्ट से वो तलाकनामा मिला है, तो वो उस तलाक के ताल्लुक से बताइए, क्या वो तलाक हो गया उसका? देखिए, तलाक का मामला ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़्लुहुन्ना जिद्दुन व जिद्दुहुन्ना जिद्दुन, मजाक में भी कोई ऐसा ना करे ना कहे, और संजीदगी में भी लफ्ज़ तलाक ना बोले, वरना वो कंसिडर कर लिया जाए। तो बेहतर तो है कि जब आदमी तलाक दे तो गवाह भी बना ले, बेहतर है। सही बुखारी में बाकायदा ये बाब इमाम बुखारी ने बांधा है कि गवाहों को रखने का बयान तलाक देते हुए, ये बाब इमाम बुखारी ने बांधा है बाकायदा किताब तलाक में। तो इंशाल्लाह हम उसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर बगैर गवाह के भी कोई तलाक दे दे, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी यहाँ आपस में बात कर रहे हैं, झगड़ा हुआ, कुछ अनबन हुई और तलाक दे दिया, बीवी ने सुना और शौहर ने जबान से अटर कर दिया, हाँ मतलब जबान से बोल दिया, कोई गवाह नहीं, तलाक हो गई। ऐसे ही अगर कोई फोन पर अपनी बीवी को तलाक देता है और बीवी रिकॉग्नाइज करती है कि मेरे शौहर ही हैं जो बोलने वाले हैं, ये उन्हीं का फोन है, उन्हीं की आवाज है, मैंने रिकॉर्ड कर ली है, कोई गवाह नहीं, लेकिन तलाक हो गई। ऐसे ही अगर कोई लिख करके भेजता है, अपनी दस्तखत करके भेजता है कि मैं तुम्हारा शौहर फला इब्ने फला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, कोई गवाह नहीं, ये लेटर मिला बीवी को, बीवी पहचानती है मेरे शौहर का की राइटिंग है, मेरे शौहर ही का खत है, उन्हीं की दस्तखत है, ये तलाक हो गई। तो तलाक के लिए गवाह बनाना अफजल है, बेहतर है, मुस्तहब है, रिकमेंडेड है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो बगैर गवाह के भी तलाक हो जाती है। बस मामला सिर्फ इतना है कि बीवी रिकॉग्नाइज कर ले जाए कि हाँ, सामने नहीं है तलाक देने वाला, दूर से उसने लिखकर भेजा है, और क्या कहते हैं, या उसने टेलीफोनिक गुफ्तगू में ऐसा कहा है, लेकिन बात करने वाला मेरा शौहर ही था और उसने तलाक दी है, तो इंशाल्लाह उसके रिकॉग्नाइजेशन के बाद वो कंसीडर कर ली जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा शेख। एक छोटा सा सवाल है बस आखिरी, कि जी अगर कोई मियाँ बीवी झगड़े होते हैं आपस में, और उसमें शौहर कई मर्तबा कह चुके होते तुम यानी मेरे लायक नहीं हो, या मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, और तुम तलाक ले लो और चली जाओ, और ये और वो, इस तरह की बातें हर दफा झगड़े में कहे, यानी कई दफा ये अल्फाज इस्तेमाल कर चुका है, तो क्या, जैसे अभी आपने कहा कि मजाक में भी तलाक हो जाती, तो क्या ऐसे में भी तलाक हो जाएगी जो हर दफा इस तरह की बात करे शौहर को? देखिए, बहन ने जो सवाल किया है प्रोदापा ने कि कोई शौहर जो धमकियां देता है और कहता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन खुद ये नहीं कहता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो जब तक वो ये ना कहे कि मैं कर रहा हूँ या मैंने कर दिया, तलाक दे दिया, तब तक तलाक नहीं होगी। वो तो कहा जा रहा है, उसको मशवरा दे रहा है वो कि भाई तुम ले लो तलाक, चली जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम मांगती हो, तो तलाक नहीं है। लेकिन मजाक करते हुए कह रहे मैंने तुझे तलाक दिया, हाँ मिसाल के तौर पर, तो तलाक हो। या कोई शर्त रखी कि ठीक है, तुम गुस्सा हो ना, तुम अपने अम्मी के घर जाना चाहती हो, अगर तुमने हमारे घर से पैर बाहर निकाला तो तुझे तलाक, मिसाल के तौर पर। अब अगर वो बीवी अपने घर से पैर बाहर निकालती है कि जा रही है, तो बाहर निकलते ही उसको तलाक हो जाएगी, एक ही होगी कि तलाक हो जाएगी। तो इस तरह की कोई चीज हो कि किसी कंडीशन पर उसको लागू कर दिया जाए, तो वो कंडीशन फुलफिल होगी तो तलाक हो जाएगी, है ना। या बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में कह दिया जाए मैंने दे दिया या मैं दे रहा हूँ, तो तलाक हो जाएगी, मजाक हो या संजीदगी हो। लेकिन अगर किसी चीज पर निर्भर किया जाए तलाक को और वो चीज वाकई ना हो तो तलाक नहीं होगी। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि अगर तुमने चौखट से बाहर, हमारे घर की चौखट से दहलीज से बाहर घर निकाला तो तुझे तलाक, वो नहीं गई,
वो नहीं गई अपनी माँ के घर, उसने अपना पैर नहीं निकाला, उसको तलाक नहीं है ना। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो दूसरों पर डिपेंड कर दी जाती हैं, जब तक वो चीज वाक़ई ना हो तब तक वो दूसरी चीज भी, हाँ, शर्त ना हो तो मशरूत नहीं पाया जाता है, ये शरीयत का फायदा है। तो यूं कहना कि तुम तलाक ले सकती हो, हाँ ले लो चली जाओ, मैं दे दूंगा, तो इससे तलाक नहीं, दे दूंगा, लेकिन ना उसने तलाक मांगी ना उसने तलाक दिया, तो इससे तलाक इंशाल्लाह नहीं होगी, इल्ला ये कि वो मजाक ही में कहे कि मैंने दे दिया और लफ्ज तलाक बोल दी कि मैंने तुझे तलाक दिया, तो मजाक में भी नहीं कहना चाहिए। जी, अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए कई मैटर शेख, ऐसे आए मैंने, हाँ बोलिए। जैसा मैंने आपको कहा कि उन्होंने जो है पेपर के जरिए वो भेज दिया तलाकनामा, हम्म, तो वो एक ही ठीक, बार भेज दिया उन्होंने, तो उसमें वो तलाक हो गई। एक ही बार में तीनों तलाक बोलकर दे दिया, तो क्या फिर भी देखिए, इद्दत वाजिब हो जाएगी? देखिए अगर किसी ने लिख करके भेजा है और इस बात की तस्दीक हो जाए, तो हो सकता है कोर्ट के जरिए लिखवा कर भेजा हो, और ये तस्दीक हो जाए कि आप ही ने भेजा है, यानी मेरे शौहर ने भेजा है, और आपको लेटर मिल गया, आपने पढ़ा, तलाक हो गई। लेकिन आ, हाँ मतलब तलाक हो गई, बस एक चीज आप देखें, अगर जिसके पास ये लेटर पहुंचा, यानी उस खातून को तलाक दी गई और ये लेटर उनको मिला, जब ये लेटर मिला है तो वो अगर मेंसेस पीरियड में रही तब ये तलाक नहीं मानी, हालत है ऐसी। अगर वो पाक हैं उस वक्त उन्होंने रिसीव किया, पढ़ा, तब तो वो तलाक हो गई। लेकिन अगर उस वक्त वो हालत नापाकी में है और ये लेटर मिलता है, तो हालत हैज में तलाक वाक़ नहीं होती है। ये शरीयत का फायदा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये गलती हो गई थी, उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक दिया और वो हालत हैज में, है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कंसीडर नहीं, उसे शुमार ना किया जाए। तो इससे, क्योंकि ये हदीस है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मजाक में भी तलाक बोलने पर हो जाती है, संजीदगी में जैसे होती है, और दूसरी तरफ कोई आदमी कहता है कि हालत हैज में कोई बोले और बीवी पाक ना हो तो तलाक नहीं होगी, तो उसकी दलील ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं माना, कंसीडर नहीं किया है, तो इसके लिए चांस बाकी रहता है। हाँ, कि भाई मैं पाक नहीं थी जब आपने तलाक दिया, चाहे वो जबान से आप बोले हो चाहे लिख करके आपने। अच्छा, दूसरी बात, लिख करके आदमी भेजता है तो कभी कभी कुछ लोग 3 तलाक लिख के भेज देते हैं। असल में लोग जानते नहीं, इल्म नहीं है उनके पास, 3 तलाक देने की जरूरत ही नहीं है जुदाई के लिए, एक तलाक काफी है। आदमी एक तलाक दे दे और उसके बाद अगर उसको वाकई नहीं जो है रहना है अपनी बीवी के साथ, अलग ही होना है, तो बस एक तलाक दे दे और 3 मेंसेस पीरियड तक, यानी उसके 3 हालत हैज के खत्म होने तक वो उससे करीब ना हो, वो उससे जो है मुबाशरत ना करे, अपने हकूक के ज़ौजियत उसको न दे, 3 मेंसेस पीरियड गुजर जाएं, तो भले एक ही तलाक थी, जुदाई हो गई, 3 मेंसेस पीरियड खत्म हो गया, शौहर ने रुजू नहीं किया, हाँ, और अपनी बीवी से कंज्यूमेशन नहीं किया, और उसके बाद जब 3 मरहला गुजर गया है इसका, तो वो बीवी आजाद हो गई, इद्दत खत्म। अब जो है वो उसकी शादी उसके औलिया सरपरस्त दूसरे से कर सकते हैं। लेकिन इस एक तलाक का फायदा क्या है, अगर वो दोनों फिर से किसी वजह से सोचते हैं कि अरे हमारे गोद में बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, परवरिश हो रही है, तुम चली जाओगी अपने माँ के घर, हमारे बच्चे, हाँ, उनकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी, तो चलो हम लोग फिर से, तो चूंकि एक ही तलाक हुई है, हाँ, और अब वो इज्जत खत्म करके चली गई अपने अब्बू के घर, अम्मी के घर, लेकिन फिर अगर वो राजी कर ले जाता है शौहर कि नहीं आओ हम दोनों फिर से रहेंगे, तो इनका नया निकाह फिर से हो सकता है। तलाक एक हुई है ना, तलाक रजाई बोलते हैं, तो रुजू नहीं किया, लेकिन तो रुजू नहीं किया और इज्जत गुजर गई, तो क्या हो गया, तलाक बाइन हो गया।
मतलब जुदाई हो गई, लेकिन ये जुदाई ऐसी नहीं है कि दोनों फिर नहीं रह सकते हैं। कैसे? नया निकाह, नई मेहर। लेकिन अगर आदमी 3 अलग अलग तलाक दे अपनी बीवी को, हाँ, एक बार जिंदगी में दे दिया, फिर रुजू कर लिया, फिर कभी दूसरी बार झगड़ा हुआ फिर दे दिया, फिर रुजू कर लिया, फिर तीसरी बार कभी नाचाती हुई और फिर से तीसरी बार तलाक बोल दिया, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वो बीवी जुदा हो जाएगी। अब ना तो शौहर रुजू कर सकता है तीसरी तलाक के बाद, जो तीसरे अलग टाइम में दी गई है, और ना ही उस खातून से शादी कर सकता है। लेकिन लोग हलाला करवाते कराते हैं, जो गुनाह कबीरा है। अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर उन्होंने लिखकर भेजा है और 3 तलाक भेजा है, तो 3 तलाक तो नहीं हुई, एक ही तलाक हुई। लेकिन जिसको ये मिला है, जो उनकी बीवी है, वो इद्दत अब गुजार लें। हाँ, 3 मेंसेस पीरियड, अगर वो मेंसेस वाली है तो 3 मेंसेस पीरियड खत्म होते ही उनकी इद्दत खत्म हो जाएगी, है ना, और उसके बाद वो उनसे जुदा हो जाएंगी। इल्ला ये कि अगर कोई खातून ऐसी है जिसको तलाक हुआ और वो हालत हमल से है, तो वो इंतजार करेगी जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए। पैदाइश के बाद फिर उसकी इद्दत खत्म होगी जी। और अगर कोई खातून ऐसी है जो ना हामिला है और ना ही वो मेंसेस वाली है, बूढ़ी खातून है, उसको मेंसेस भी नहीं आती, तो उस तलाक के बाद जो मिला है रुख्सा, उसके बाद सिर्फ 3 महीने इंतजार करना। क्या फर्क है 3 महीने और 3 मेंसेस में? जो मेंसेस वाली खातून हैं वो 3 मेंसेस इंतजार करेंगे खत्म होने, तो वो 4 महीना भी हो सकता है, 5 महीना भी हो सकता है, मेंसेस कभी आगे पीछे हुआ। और जिसको मेंसेस नहीं आते उसको तलाक अगर हुई है, तो वो सिर्फ 3 महीना, गिने चुने 3 महीना 90 दिन का इंतजार करेगी और फिर उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। ये अहकामात हैं जो जानना चाहिए, और इनकी रोशनी जब रहती है तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो टूटने के कगार पर होते हैं, फिर मिलने के रास्ते बन जाते हैं। ऐसा कई मरतबा हुआ, कई इश्यूज आए कि मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो गई, और वो भी उनके मुताबिक 3 तलाक हुई, 3 अलग अलग मरहलों में। लेकिन जब मैंने पूछा कि पहली तलाक जब हुई थी तो आप पाक थे या नापाक थे? हाँ, मैं पाक थी। दूसरी बार जब हुई तलाक, बोले मैं नापाक थी, तो ये वैलिड ही नहीं। तीसरी बार जब तलाक हुई, मैं पाक थी, हाँ, तो ये दूसरी तलाक थी। तो अभी 2 ही तलाक हुई, आप दोनों मियाँ बीवी हो, रुजू कर लो, कुछ बिगड़ा नहीं। सुभान अल्लाह, कितने खुश है वो लोग कि हमारा घर उजड़ने से बच गया। तो मसाइल में जानकारी की वजह से इस तरह अल्लाह के रहमतों के साए में हम लोग रहते हैं। और जब इल्म ना हो, बसीरत ना हो, तो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कोताहियां और गलतियां हो जाती हैं। अल्लाह हम सबको इल्म और बसीरत अता फरमाए। ठीक है बहनों, आवाज जा रही है हमारी? जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर फर्ज करें, जैसे आपने कहा कि अगर वो मेंसेस उसको नहीं होते हैं तो उसको 3 महीना इद्दत है, 90 डेज। तो क्या बेवा के लिए भी ऐसा ही होगा? जैसे बेवा को जो है वो 4.25 महीने, 4 महीना 10 दिन है, तो वो बेवा के लिए तो ऐसा नहीं है ना, अगर वो बेवा हो नहीं गई नहीं, है औरत। हाँ, ये अच्छा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बेवा की इद्दत उसके लिए अल्लाह ने फिक्स कर दिया है टाइम। क्या फिक्स कर दिया है? 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10। अच्छा, अब अगर कोई बेवा ऐसी है जो हालत हमल से थी और शौहर के इंतकाल के 1 महीना या 2 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया, पैदाइश हो गई, तब मसला आता है कि अब उसकी इद्दत पूरी हो गई या अभी 2 महीना और 2 महीना 10 दिन इंतजार करना। तो इसके बारे में जो साहबे किराम का फतवा है वो ये है, साहबे किराम के जमाने में इस तरह के वाक़यात थे कि अब अदुल अजलैनी, 2 मुद्दतों में से जो लंबी मुद्दत होगी उसको वो पूरी करेगी। वो बेवा है ना, और वो हामिला भी थी, अपने शौहर के इंतकाल के बाद उसके यहाँ पैदाइश हुई 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद। तो अभी इन दोनों मुद्दतों में से एक मुद्दत तो होती है कि भाई बच्चा पैदा हो जाए तो इद्दत खत्म, और यहाँ पर जो बेवा है उसके लिए एक इद्दत ये है कि 4 महीना 10 दिन।
تو اگر اس سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدائش ہو جاتی ہے، تو اس بیوہ کو بقیہ دن پورے کرنے پڑیں گے 4 مہینہ 10 دن، 4 مہینہ 10 دن۔ یا اگر ایسا ہو کہ جب شوہر کا انتقال ہوا اور وہ بیوہ حمل سے رہ گئی اور 4 مہینہ 10 دن ختم ہو گئے، ابھی کچھ مہینے، مثال کے طور پر 2 مہینے ابھی پیدائش سے باقی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے حساب سے، تو اب وہ 2 مہینہ اور انتظار کرے گی، جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تب اس کی عدت ختم ہوگی، اس سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ابعاد الاجل ہیں، 2 مدتوں میں سے جو لمبی ترین ہوگی اس خاتون کو وہ پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ وہ بیوہ ہے۔ ہاں اگر سمجھو اگر ڈیلیوری 1 ہفتے بعد ہوتی ہے انتقال کے، تو پھر اس کی عدت کیا مانی جائے گی؟ وہی 4 مہینے 10، یعنی پورا وہی میں دن نے کہا لینا نا ہی کہ تو ہاں مطلب اگر 4 مہینے 10 دن سے پہلے اگر وضع حمل ہو جاتا ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو 4 مہینہ 10 دن پورے کریں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت ختم ہو گئی لیکن ابھی 1 مہینے یا 1 ہفتے کے بعد، یا 10 دن کے بعد ڈیلیوری ہونا ہے، تو جب ڈیلیوری ہوگی اس وقت کا انتظار کرنا ہے کہ ڈیلیوری ہو جائے گی تب ہماری عدت پوری ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی، بچہ دوسرے کا۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا شیخ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم لوگوں نے سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین۔ جہاں بھی اس علم کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی روشنی کو پھیلانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک جزاک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔